اور وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ آج جو پیغام ہے میرے دل میں آپ کے لیے وہ یہ ہے، ایمان کس پر رکھنا ہے اور اسی ایمان کی جان فشانی کرنا ہے۔ ایمان کس پر رکھنا ہے اور اسی ایمان کی کیا کرنا ہے جی؟ جان فشانی کرنا۔ میں چاہتا ہوں پہلی تلاوت کی جائے۔ جی آئیے میرے ساتھ نکالیے یہودا کا عام خط، اس کا باب نمبر ہے 1 اور آیت نمبر 3 سے۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ آمین۔ ہم نے تلاوت کی اسی ایمان کی کیا کرو جی؟ جان فشانی، جو مقدسوں کو اور ایک ہی بار سونپا گیا۔ اس کا مطلب ہے ایمان جو سونپا جا رہا ہے، رسول لکھ رہا ہے، جب میں نجات کی بابت لکھ رہا تھا تو میں نے مناسب جانا اور تم اس ایمان کی جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا۔ اس حوالے کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے ایمان جو سونپا جا رہا ہے وہ کسی گناہ گار کو نہیں، گناہ گار کو ایمان سونپا نہیں جا رہا، بلکہ ایمان والا کون ہے؟ اور وہی ایمان مقدسوں کو سونپا گیا۔ ایمان والا ہی مقدس ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا، جو ایمان نہیں لاتا، وہ مقدس نہیں ہے۔ مقدس کون ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے۔ مقدسوں کو وہی ایمان سونپا گیا اور اسی کی جان فشانی کرو۔ جان فشانی کرنا کیا؟ میں ایمان درست رکھتا ہوں؟ کیا میں ایمان صحیح رکھتا ہوں؟ کیا میرا ایمان کیسا ہے؟ اب جس کو پوچھو وہ کہتا یہ تو میرا ایمان ہے۔ اور سن لیجئے، ایمان جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بول جھوٹ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان بول رہے ہیں۔ بھائی ایمان جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے، ایمان مقدس کے ساتھ ہے۔ مقدس قائم ہو، مقدس اور پاکیزگی قائم ہو، اور پاکیزگی نظر آئے۔ پاکیزگی اس ذات کی، الہی ذات کی صفت ہے جو روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ بغیر روح القدس کے ایمان بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ کون ہے جو مسیح کو خداوند کہے بغیر روح القدس کے؟ کوئی نہیں ہے اسے خداوند کہے، کوئی نہیں ہے بغیر روح القدس کے اسے خدا کہے۔ کیونکہ جب تک باپ نہ سکھائے، جب تک باپ نہ بتائے بیٹا کون ہے، تو کوئی نہیں جان سکتا۔ خدا کا روح جو پاک روح ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے بیٹا کون ہے۔ تو ہم نے جس پر ایمان رکھا ہے اس کی کیا کرنی ہے جی؟ جان فشانی۔ جان فشانی کہتے ہیں جاننے کو۔ کس کو جی؟ جاننے کو۔ بڑی پیاری یسوع مسیح نے بات کہی،
तेरी आंख रोशन है तो तेरा पूरा बदन रोशन है। आंख से मुराद जो यस्सु मसीह कह रहा है, आंख से मुराद तालीम है। और जिस तालीम को तू रोशनी समझता है, जिस तालीम को तू नूर समझता है, जिस तालीम को तू सच्चाई समझता है, अगर तारीकी हो, अगर, तो फिर तारीकी कितनी बड़ी होगी। भाई हमने ईमान जब रखना है तो दुरुस्त अकायद पर रखना है। ईमान किस पर रखना है जी? दुरुस्त अकायद पर रखना है। और दुरुस्त अकायद क्या है? दुरुस्त अकायद ये है, हम खुदाए सलूस पर ईमान रखने वाले। अगर हम खुदाए सलूस पर ईमान नहीं रखते तो इसीलिए अकीदे में लिखा है, जो कोई नजात पाना चाहता है, जो कोई नजात, मसीही दीन का जो अकीदा है वो ये है, जो कोई नजात पाना चाहता है वो वाहिद खुदा की परस्तश किस में करे? तसलीस में। और तसलीस की परस्तश तौहीद में। जब हम तौहीद की परस्तश करते हैं तो दूसरे अकानीम भी वहाँ मौजूद होते हैं। जब हम बाप की परस्तश करते हैं तो बेटा भी मौजूद, रूह कुद्दस भी मौजूद। इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए। और लिखा है, खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए क्योंकि वो मौजूद है। जब मौजूदगी की बात करते हैं तो खुदाए सलूस मौजूद होता है हमारी इबादत में। और इसी पर हमने क्या करना है जी? ईमान लाना है और इसी की जान फशानी करनी है। दाऊद कहता है, मुझे क्या रफान मिल गया, वो मेरे साथ है। ईमान तो हमारा है, क्या इसकी पहचान भी है? खुदाए सलूस मौजूद है। जब पहचान के साथ होगा और उसका बयान उत्तम होगा, जब मकाशफा मिलेगा, खुदा मौजूद है, खुदाए सलूस मौजूद है, पाक तसलीस मौजूद है, तो फिर उसकी तशरीह उत्तम होगी, लफ्जों से उत्तम होगी, बातों से उत्तम होगी और उसका बयान ही फर्क होगा। उसका बयान ही फर्क होगा। इसीलिए हमने क्या करना है? उस ईमान की जान फशानी करनी है जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। वो ईमान क्या किया गया है जी? सौंपा गया है। और जो ईमान सौंपा गया है उस ईमान को पतरस कहता है, हमने कीमती सा ईमान पाया। इन्होंने हमारी तरह कीमती ईमान पाया, हमारे जैसा कीमती ईमान। और कीमती ईमान कौन सा है? और जो मुकद्दसों को, और लिखा है मसीह की रास्तबाजी में से हमने पाया। हमने ईमान क्या पाया जी? मसीह की रास्तबाजी में से पाया। तो उसी की हमने जान फशानी करनी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आप किस पर ईमान रखते हो? आपका एक जुमले में अगर कोई पूछे आप ईमान किस पर रखते हो? खुदा पर तो सारी उम्मतें ईमान रखती हैं, यहाँ तक बदरूहें भी ईमान रखती हैं। लिखा है वो थरथराती और कांपती हैं।
ہر ایک قبیلہ, ہر ایک امت, ہر ایک اس خدا پر ایمان رکھتی ہے. تو آپ کا ایمان کیا ہے جس سے آپ مقدس بنے, جس سے آپ مبارک بنے؟ مقدس کہتے ہیں الگ کیے ہوئے کو. آپ کسی ایمان سے الگ ہوئے. ہم تو بھیڑ بنا کر رکھتے ہیں نا جی, رلی ملی, جس کو یونائٹڈ کہتے ہیں. بھائی ہم یونائٹڈ نہیں ہیں, ہمیں تو مقدسوں کو ایمان سونپا گیا. مقدس کس کو کہتے ہو؟ لکھا میرا کلام اسے سنا تاکہ انہیں مقدس کیا جائے. مقدس کا مطلب ہوتا ہے الگ کر دینا. ہمارا کون سا ایمان ہے جو کائنات کی چیزوں سے, دوسری امتوں سے اور مذہبوں سے اور دینوں سے ہمیں الگ کرتا ہے؟ کہتے تھوڑا سا فرق ہے, بلکہ رسول کیا کہتا ہے؟ تم نے وہی قیمتی ایمان پایا اور اسی ایمان کی جان فشانی کرو جو مقدسوں کو, جو الگ کیے ہوں کو ایمان ملا. ایلڈر صاحب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کون سا ایمان ہے جو الگ کرتا ہے؟ نہیں ہم تو سارے اکٹھے ہی ہیں جی, یونائٹڈ بنا لیتے ہیں. بدعت بھی اسی میں, جو ہمارا ہم ایمان والا نہیں وہ بھی ساتھ ہے, تو کہتے ہیں جی ہم یونائٹڈ ہیں. وہ خدا ہمیں الگ کر رہا ہے. وہ کون سا ایمان ہے؟ سنیے, وہ کون سا ایمان ہے؟ اسی کی جان فشانی کرنا ہے, جاننا. جان فشانی کا مطلب ہوتا ہے جاننا. جو آپ کا ایمان ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کس سے مقدس ہوا, اسی لیے تو میں اس کی جان فشانی کی. جان فشانی اس لیے کہتا ہے اے بھائیو جنہوں نے نجات پائی ان کی. آپ نے نجات پائی ہے یا نہیں؟ پھر نجات پر بھی بات کرتے ہیں. پہلے ہم یہ بات کریں گے کس پر ایمان رکھ کے جس سے ہم الگ ہوئے. میرے پوائنٹ کی سمجھ آئی؟ میں اس پوائنٹ پر جس پر لے کر آنا چاہتا ہوں, یا نہیں آئی؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ کیوں بھائی لیا سمجھ آ رہی ہے جی؟ بھائی ہم کسی ایمان سے کیا ہوئے الگ, کس عقائد سے الگ ہوئے, کس عقیدے سے الگ ہوئے. کس عقیدہ بھی ایمان ہی ہوتا ہے, عقیدے کو کلمہ بھی کہتے ہیں. جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا آپ کا کلمہ کیا ہے, آپ سے وہ یہ نہیں پوچھ رہا آپ کو ایتھیں سنائیں, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی کس بات پر تیرا ایمان ہے, تیرا کلمہ کیا ہے, بھائی تیرا عقیدہ کیا ہے. وہ کہتے بھئی ہمارا تو ایمان یہ ہے ہم واحد خدا کی پرستش کرتے ہیں. یہودی سے پوچھو اور ہمارے پڑوسیوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ واحد خدا کی. تو میں نے واحد والے سے پوچھا, یہ بندہ گواہ ہے, اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی, یہ بندہ گواہ ہے, میرا خیال یہ بھی گواہ ہے. اور کون گواہ تھا؟ بٹی صاحب نہیں آئے, وہ بھی گواہ تھا. ایک عبادت کی تو وہ آگے. تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ جس کو تو واحد کہتا ہے گنتی کے اعتبار سے کہتا ہے یا کس اعتبار سے کہتا ہے؟ 70 سال اس کی عمر تھی, کم سے کم 30 سال کا تو اس کا تجربہ ہوگا نا اپنے دین کا. بھائی کس اعتبار سے کہتے ہو وہ واحد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں واحد پر تو ہمارا کہنا فرق ہے. ہم بھی واحد خدا کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے یوحنا نے کہا تم اس واحد خدا کو پہچانو اور مسیح یسوع کو اور برحق کو. بھائی واحد کو بھی پہچانو, مسیح کو بھی پہچانو اور روح القدس کو بھی پہچانو, خدا ثالوث کو پہچانو. جب واحد کرتے ہیں, ہم جب واحد کہتے ہیں ہم عدد کے اعتبار سے نہیں کہتے. اکلا ہی آیا بچہ, یہ ماں کتنے آ؟ میری بات کو سمجھے؟ پھڑ لو انہوں بچے نو, سارے ایک نو پھڑ لو نظر, انہوں پیچھے لے جا, اتھے بھی آواز آ جائے گی. جی میری بات کو سمجھے ہیں جی؟ کہاں تھا میں جی؟ ابھی پتہ چل جاتا کتنی خرابی پڑتی ہے. اب میرا ذہن کہتا ہوں تو آپ کا بھی.
भाई वाहद पर हो रही है। भाई वाहद किस एतबार से गिनते हो? जब वाहद कहते हो, आपने ईमान रखा है ना खुदा पर, खुदा वाहद है, तो वाहद क्या गिनती के एतबार से 1 2 3? सुनिए, खुदा अददी अतबार से वाहद नहीं। अदद कहते हैं गिनती को, गिनती के अतबार से नहीं। खुदा गिनती से बाला तर है, खुदा लासानी है। खुदा क्या है जी? लासानी है। जब हम उसे वाहद कहते हैं तो वो लासानी है, उसके साथ और कोई है नहीं जिसको गिना जाए, और उसके बराबर कोई है नहीं जिसको बनाया जाए, क्योंकि वो तो लासानी है। इसलिए हम उसे वाहद कहते हैं। किस लिए वाहद कहते हैं? लासानी के सबब से। वो लासानी है, गिनती के एतबार से नहीं। उस जैसा कोई है ही नहीं। मेरी बात को समझे हैं? इस पर हमारा क्या है? ईमान। और जब हम खुदाए सलूस इसको गिनते हैं तो हम फिर भी गिनती के एतबार से गिनते ही नहीं है। गिनती की तो बहस ही नहीं। गिनती की तो बहस ज्योमेट्री में होती है, जहां चांद और सूरज होता है। तो जहां चांद और सूरज नहीं, खुदाए सलूस तो वहां भी है। खुदाए सलूस गिनती के एतबार से नहीं। 1 2 3। इसीलिए हमारे अकायद में, हमारे अकीदे में ये बात है। क्या बात है? हम उस जौहर को तकसीम नहीं करते। उस जौहर को हम तकसीम नहीं करते। तकसीम करना क्या? ऐसे मिसाल देते हैं जी, जैसे ये मेरी एक उंगली है जी, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस है एक ही, इसके 3 हिस्से बनाना। इसीलिए अकीदे में लोक हो गई ये बात, भाई कीदे को क्या करना है? जौहर को तकसीम नहीं करना, इसके हिस्से नहीं बनाना। इसके हिस्से, जैसे बहुत बड़ी मोतबर किताब है लुगत, उसमें तशरीह है क्या भाई? तसलीस क्या है? बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके और उसे क्या कर देना जी? जमा कर देना, उसको तसलीस कहते हैं। भाई तसलीस ऐसे नहीं है, क्योंकि तसलीस बातनी एतबार से है। उंगली वाली मसाल बातनी नहीं है, खारजी है। ऐसे ही आटे वाली मसाल बातनी नहीं है, खारजी है, क्योंकि मसाल जो है उस ज़ात को पेश नहीं कर सकती। मसाल उस ज़ात का इजहार होता है, फिर भी उस ज़ात को पूरा बयान नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि वो क्या है? लासानी। वो क्या है जी? लासानी है। हम लासानी पर, और जब हम कहते हैं ना बाप, बेटा और रूल कुदस, तो कहते हैं जौहर के अतबार से, कलमे के अतबार से, इलाही शख्स के अतबार से। इसी जौहर को क्या कहा जाता है? कलमा भी। इसी जौहर को ज़ात भी कहा है, क्योंकि ज़ात, जौहर का मतलब ज़ात ही होता है। जौहर का मतलब क्या होता है? ज़ात ही। तो ज़ात काम नहीं करती, ज़ात काम नहीं करती। और ज़ात जब काम करती हुई नजर आए तो वो ज़ात काम नहीं कर रही, बल्कि ज़ात का मालिक काम कर कर, फेल कर कर, उस ज़ात का जो मालिक इलाही शख्स है, जो इलाही शख्स है, और उसी इलाही शख्स में ज़ात के अतबार से कसरत है। अतबार तो फिर भी देखो ना, लफ्ज़ है ना, अतबार तो किसी के साथ ठहराना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ज़ाती, उसकी ज़ात की कसरत है। जैसे बाप, बेटा और
روح القدس. یہ ذاتی باطنی کیا ہے جی؟ کثرت ہے. باطن کی کیا ہے؟ کثرت ہے. اور جو باطنی اور ذات کی کثرت ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ الہی شخص. اور اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ کلمہ. کیا کہا جاتا ہے جی؟ کلمہ. اور کیا لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے، اور کلمہ خدا تھا. کلمہ کیا تھا جی؟ خدا تھا. اب جب لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، وہی کلمے کے وسیلہ سے چیزیں بنی. جب کام ہو رہا ہے تو ذات کام تو نہیں کرتی، ذات کا مالک الہی شخص. تو جب ہم کلمہ کہتے ہیں بیٹے کو تو پھر اس کو الہی شخص بھی ہم مانتے ہیں. اور جب ہم اسی کلمے کو جوہر کہتے ہیں تو خدا کی ذات بھی اسے مانتے ہیں. اور اس بات پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. بھائی بیٹا کیا ہے؟ کلمہ. بیٹا کیا ہے؟ الہی شخص. بیٹا کیا ہے؟ خدا. بیٹا کیا ہے؟ کلمہ. اور اسی پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. اگر میں کہوں آپ کا کس بات پر ایمان ہے، ایک لفظ میں بتاؤ، پھر آگے جاتا. ہاں جی بولے. کیا ایمان ہے جی؟ جی. اور کوئی بھائیوں میں؟ بیٹے پر. جی. تثلیث پر کیا ایمان ہے؟ بیٹے پر کیا ایمان ہے؟ بیٹے کا ایمان تو بدروہیں بھی کہتی اے خدا تعالیٰ کے بیٹے. بیٹے پر کیا ایمان ہونا چاہیے؟ بیٹا حقیقی خدا ہے. اس لیے یوحنا نے جب منادی کی تو کہا خدا کا بیٹا آ گیا. اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی تاکہ ان باتوں کو، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ یوحنا بھی کر رہا ہے، کہتا ان باتوں کو سمجھیں. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ بیٹا حقیقی خدا ہے. اور دوسرا پاک تثلیث کا اقنوم. پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم. اور وہ کیا ہے؟ رٹا لگائیں. وہ کیا ہے؟ کلمہ. وہ جوہر اور وہ الہی شخص، وہ ذات. ٹھیک ہے. جب ہم ان الگ الگ گنتے ہیں، اس کو گنا گیا ہے، اس کو سمجھا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے، اسی ہی کلمے کو، اسی ہی پاک تثلیث کے دوسرے اقنوم کو کہا گیا ہے، مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور اسی پر ایمان لایا جاتا ہے. جب ہم جوہر کہتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جوہر کا مطلب کیا ہے؟ ذات. جوہر کا مطلب کیا ہے؟ ذات. اور ذات کام نہیں کرتی، ذات کا مالک الہی شخص کام کرتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اسی لیے عبرانیوں کے خط میں بھی ہے، کیا لکھا ہے؟ بیٹے کی بابت کہتا ہے. بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے؟ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. اے خدا. بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے؟ رٹا لگاؤ. بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے؟ کہندے تھوڑا سی فرق ہے جی. بھلا کادا جی؟ کادا فرق ہے جی؟ تسی بیٹے نو خدا نہ کہو تے تہاڈا تے ساڈا ہی فرق ہے. ایدا مطلب ہے جیڑا بیٹے نو خدا نہیں ماندا او گوانڈیاں ورگا ہی ہے. میری بات کو سمجھے جی؟ جیڑا بیٹے نو کہندے فرق کنا کیا؟ تھوڑا جا کی. تسی خدا دا بیٹا کہندے ہو، تسی خدا دا
बेटा कहते हो। ते जे बेटा नहीं मानदा, बेटे नू खुदा नहीं मानदा, बेटे नू पाक तसलीस दा दूसरा कानून नहीं मानदा, ते किहना वर्गा है? किहना वर्गा? मसाया वर्गा। कहन च हर्ज ते कोई नहीं, वो भी इंज ही कहते हैं। और भाई आप मुकद्दस किस लिए हुए हैं? इसी ईमान पर बेटा खुदा है, बेटा हकीकी खुदा है, बेटा अजली है, बेटा इलाही है। मैं एक जुमला बोल रहा था, मैं कह रहा था बेटा बाप की रूफ़े तहज्जी है, जो सब चीज़ें उसी से लिखी जा सकती हैं। इसीलिए लिखा है अल्फ़ा और मेगा मैं हूँ। अल्फ़ा और मेगा का क्या मतलब है? ए से लेकर जी तक मैं ही हूँ, ए से लेकर जी तक मैं ही हूँ। हुण जेड नहीं, हुण जी लोग कहते हैं जी, जी दे आ जाओ। ए से लेकर जी तक मैं ही हूँ। भाई जितनी चीज़ें लिखोगे इसी से लिखोगे, जो कुछ बनाओगे इसी से बनेगा, ड्राइंग बनाओगे तो इसी से बनेगी, नक्शा बनाओगे तो इसी से बनेगी, हर एक चीज़। इसलिए रसूल ने कहा आसमान की चीज़ें हों, ज़मीन की हों, अनदेखी हों, देखी हों, हुकूमतें हों, इख्तियार हों, सभी चीज़ें उसी के वास्ते और उसी के लिए पैदा हुई और पैदा की गई। इस पर हमारा क्या होना चाहिए जी? ईमान। अब हमने निजात कैसे पाई है? मैं चाहता हूँ एक हवाला और पढ़ा जाए। हमने निजात कैसे पाई है? मेरी बात को समझ पाए हैं या नहीं? यह मुश्किल लग रही है। भाई हमारा ईमान किस पर है? बेटा क्या है? खुदा। हमारा ईमान क्या है? बेटा जौहर। हमारा ईमान क्या है? वेरी गुड, शाबाश। लगता कली चरच ही आई है। जिन्ने आए इन्हें सारे आवाज़ लाओ हाँ ज़रा जी। पढ़िए जी हवाला, हमने निजात कैसे पाई है जी। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका बाब नंबर है 2 और आयत नंबर है 8 जी। मैं 4 पॉइंट सिखाने एक सिखा चुके हैं जी। उसी ईमान की जान फशानी करो। ऐसी ईमान की जान फशानी करनी है जी, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है। तुझको ईमान से और फजल से ही नजात मिली। आपकी आयतें पूरी हो गई हैं जी, आगे पढ़ लो, कर दो। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। बल्कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि किसकी तरफ से है? खुदा की बख्शिश है। नजात कैसे पाई है जी? बोलो ना जी, अभी हवाला पड़ा है, रट्टा लगाओ। और ईमान के वसीला से नजात पाई। नजात केड़ी पाई है? ज़हन हजे भी परेशान ही है। नजात नहीं परेशानी तो पाई। ए ज़हन हजे भी दुखी जिहा है। ताई ते पुराने आयतनामा च लिखा उन्हें नजात नहीं सी पाई। अपने दिल से गम को, अपने दिल से क्या करो जी? नहीं, मैं तो वो सुनता हूँ, क्या उसे कहते हैं जी? यार तू पढ़िया लिखा बंदा लगदा पिया। की कहते हो जेड़े दुखी जरा उच्ची जरा यार। हाँ जी, समझ गए हो ना? यही कहे, समझ गए हो ना? केड़े सॉन्ग? तो कहता कलामे मुकद्दस च पुराने आयतनामा च की लिखा जी? अपने दिल से इसको क्या कर, बड़ी कोशिश की थी, कहता लाज वा, एदा लाज ही नहीं हुंदा। शरीयत कहती एदा लाज ही। फिर लिखा है इश्क सलाब को पानी से, एदा लाज ही नहीं होन दिया। तो यस्सु ने एदे ते आके नजात दिती है या नहीं? हुण लैके आओ ईमान, नजात मिली है या नहीं? ज़हनी परेशानियां तो, ज़हनिया कुफ्तक तो मिली या नहीं? एल्डर साहब एवं ज़हन परेशान। मैं हैरान हाँ जे लोग ईमान लै हुण इस परेशानी तो नजात मिली है
ਤੇ ਦੱਸੋ ਸੈਕੋ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਜੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਭੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਦਾਸਾ ਬੁੱਝਿਆ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? नजात ही नहीं पाई। ले आओ ईमान के वसीला से नजात पाई। नजात का क्या मतलब है? भुल गए हो? लगता सारे मैसेज फिर शुरू करने पैने। और भाई नजात का क्या मतलब है? रहाई, बख्शिश। रहाई मिल गई, परेशानी तो रहाई मिली या नहीं? टेंशन तो रहाई मिली या नहीं? और जड़ा गमज़दा दिल वा उहदे तो या उंज ही गमज़दा है, आ डुबिया दिल रहिंदा है। मैनूं एक भैन कहंदी भाई साहब दुआ करो, दिल डुबिया रहिंदा है। तो मैं कहा भैन नजात पा ला। कहंदी वो भी पाई है, फिर भी डुबिया है। मैं फिर समझ गया ये ईमान नहीं लैके आई। नजात का तेरा रट्टा है मैं पाई, दिल बुझिया ही है, आ डुबदा ही जाता है, समझ ही नहीं आउंदा ही। भाई हमने नजात पाई है। अब गुनाह किस किस को नजर आता है? देखो गुनाह या नजात पाली। अपने घर में नजात है या गुनाह डांटा मारदा पिया है? फिर कहते पादरी साहब ने सानू ही ला के कह छड़िया है। ऐ तो मैनू ही कहन दिया सी लगदा पादरी। ते गुनाह तो नजात पाई या नहीं? बीमारियां तो ये मान भी लिया जब वैसे हाँ ठीक है पादरी सामने कह देंगे उंज फोन करके उंज कहना यार बहुत बीमार है मर ही गए हैं। गुरबत तो नजात पाई या नहीं? मैं ऐस दौलत की गल नहीं कर रहा जी, मैं फजल की दौलत की गल करदा पिया। हमने फजल की दौलत हासिल हुई है, हमें जब नजात मिली है। ये दौलत तो नाराज़गी की दौलत है ना जी, बेशक हदिये वाली हो या यकी वाली हो, ये नाराज़गी की है। ये किसके साथ है जी? क्योंकि इसके साथ वादा क्या किया गया था? वादा नहीं कहूँगे, इसको ये लानत दी गई थी, अब तू मुशक्क़त से रोटी कमाएगा। और ये नाराज़गी की दौलत है। लिखा नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा कर, अगर जाती रहे तो आसमान पर तुझे क्या मिले? ख़जाना मिले। ये वाला ख़जाना नहीं जाएगा, वहाँ का ख़जाना है। हमें निजात मिली है, परेशानियों से नजात, टेंशन से नजात, बेचैनी से नजात, गुनाह से नजात। तारीकी मैं गुनाह नूं बहुता जिक्र पता क्यों नहीं करना चाहता, मैं कहना नजात मिल गई है, इन्ना लफ्ज़ ही काफ़ी है। तारीकी तो की कर ली जी? तारीकी तो की कर ली जी? नजात पा ली। कह दे तो जी तारीकी से क्या पाई है जी? नजात पाई है या नहीं जी? घर खलो के जा कहना ऐ तारीकी भाग जा, हाँ भज जा, ये ठीक है जुमला। वेल की कहना जी? वो तो भैन दे दिल दी आवाज़ सी, तुसी की कहना? मेरे दिल दी आवाज़ है वाह। ऐ तारीकी मैंने नजात पाई है, मैं नूर हूँ, जहाँ नूर होता है वहाँ तारीकी होती नहीं, वहाँ तारीकी होती नहीं। गल्लां किनू किनू तंग कर दियां? सच्ची दस्यो, मैनू ना दस्यो, अपने आप नू दसो। गल्लां हाँ ये किसी नू तंग कर दियां गल्लां? मैं नहीं उहदे घर जाना, वक्खी वालों गल करदा है। मैं उन्होंने नहीं बुलाना, उहदी ट्यून नहीं ठीक। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਿਆਓ ਈਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਰੂਹਾਨੀ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੀ। ਯਸਾਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਜਾਨ ਫਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਏ। ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਦਮ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਖਾਦਮ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਹਿਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ तो यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसिया से क्या ए दुनिया के काना च जनाब इन्ने च गल्लां तो ज़हन भी बड़ा तेज़ हुंदा है। भावें उन्हें वलेट वलूट के गल कही होवे, असीं वलेटी हुई गल भी समझ आने हैं। ते कलाम वाली भावें खोल खोल के दसदा जावे, वो नहीं समझना क्योंकि कन को नहीं समझ आई जी मेरी बात की। भाई आपको कोई बात बेचैन ना करे। अगर कोई बातें बेचैन करती है तो सुनिए, लाज बताने लगा हूँ। आपने निजात पाई है, पहले कहें मैंने इन बातों से निजात पाई है। दुनिया की बातें क्या है, रोज खफीफ सी मालूम होती हैं। की मकाशवा मिले आए, काश की मकाशवा मिले, कहता की मालूम होंगी है। खफीफ समझते हैं किसको कहते हैं? खफीफ कहते हैं भाई मामूली सी बात, मामूली जी गल ते तंग नहीं करती। कहते हैं गल करदा ते साड़ ही देंदा है। ਇਹਦਾ मतलब कोई हैवी गल है तो हैवी ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਦੀ है ना जी। वैसे कभी किसी गल ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾੜਿਆ? गल की ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ जाओ तो सड़ के लाल पीले भी हो जाओ, धुआं भी ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਓ। ओनू गल नू की कहना है, मैंने निजात पाई है और ये बात क्या है, खफीफ सी मालूम होती है। आपका रूहानी दर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने निजात पाई है। आगे नेकी की बात है जी। मैं चाहता हूँ नेकी की बात देखते हैं, नेकी कैसे करनी है ना। नेकी दीन में होती है ना, हर दीन में नेकी होती है। हर दीन में क्या होती है जी? नेकी होती है जी, क्योंकि दीन का असूल है नेकी करना। तो मसीही दीन में भी नेकी है या नहीं? शरीयत में भी नेकी थी, शरीयत से पहले भी नेकी थी। हर दीन का असूल होता है। मसीही दीन की नेकी कैसी है? पतरस का खत निकालिए, दूसरा पतरस बाप नंबर 1 और आयत नंबर 5 जी भाई पढ़िए। पतरस का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश कर कर अपने ईमान पर नेकी, अपने ईमान पर इसका मतलब नेकी कैसे? ईमान पर। अब नेकी दीन हमें क्या सिखा रहा है? मसीही दीन हमें क्या बता रहा है? मसीह की शरीयत हमें क्या बता रही है? मसीह की शरीयत और मसीह का दीन हमें बता रहा है नेकी से पहले ईमान रखो। अगर बंदा नेकी करता रहे, ईमान ना रखे, अगर ईदी का हिसाब लगाओ और वो यस्सु पर ईमान नहीं लाया, नेकियों तो उसने बड़ी की, यतीम खाना भी बनाया हुआ है। बताओ मसीही दीन के मुताबिक, मसीही अकीदे के मुताबिक वो आसमान की बादशाही में जाएगा? क्योंकि पहले क्या करना पड़ेगा? मसीही दीन और मसीही अकीदे के मुताबिक उसे ईमान लाना पड़ेगा। पहले बुनियाद ईमान को बनाया जाए। बुनियाद किसको बनाया जाए? और दूसरे दिन पहले नेकी को बनाते हैं। इसलिए नेकियां नू तोल दिया, जिहदियां ज़्यादा नेकियां वो ज़्यादा और जन्नत है ना जी। तो आपका ऐसा नहीं है जी, आपका पहले ईमान है। अब ईमान कैसे होता है? जैसा कलाम वैसा ईमान, जैसा अहद वैसा ईमान, जैसा दरमियानी वैसा ईमान। जैसे शरीयत में और क्या हुक्म मिला?
पहला जो यहूदियों का बादशाह था उसे हुक्म मिला सब बच्चे मार डाल, सब औरतें मार डाल, सब कौमें मार डाल और उन पर जाकर कब्जा कर कर उनकी एक एक चीज को फना कर दे। उन्हें की कीता जी, अच्छे अच्छे जानवर, अच्छे अच्छे औरतां रख लियां ते खुदा ने ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਬਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਖਾਏਗੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਖਾਏਗੀ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੇਗੀ, क्योंकि उसे कलाम क्या मिला था, सब मार डाल दे। अब उसका ईमान क्या बनेगा? क्योंकि कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अब उसका ईमान क्या था? मार दे। तो उन्हें नहीं मारे थे, बादशाही जाती रही ते ध्यानों की कलाम मिले आए, सारे मार दे। बोलो ना, मसीह की शरीयत नहीं होंदी। अज तुहानू मैं जान नहीं फिर देना। बोलो हाँ जी। अपने सताने वाले के लिए नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुँह ही नहीं लाना। नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो बुलाना ही नहीं। आपको क्या कलाम मिला है? बड़ी 2-4 बंदियां दी आवाज़ आउंदी है, ते गल ते जोर होना चाहिए। तुहानू कलाम मिलिया ना ते ओहदे ते ईमान बनना है। दानियल भाई ईमान करते बनना है कलाम ते कलाम की मिलिया है? दुश्मन से क्या कर, दुश्मन से क्या कर, सताने वाले के लिए, बातें करने वाले के लिए, चुगलियां करने वाले के लिए, और जो आग में चल रहे उन पर तरस खाकर झपड़ कर बचा लो। अग च चलन डे, किसी ते रहम कर, किसी ते तरस कर, ऐवा नेकी, ऐ नेकी कर ईमान दे सबब ते, ईमान से नेकी। और जो नेकी करना जानता है नहीं करता, वही नेकी कर सकता है, तफीक भी है, कलाम दी समझ भी है, पैसा दौलत दी भी समझ है, ते नेकी नहीं करता तो फिर वो की करता है? गुनाह करता। ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत, ऐसे लिखा आगे, नेकी पर मार्फत। मार्फत कैसे मिलेगी? नेकी के साथ। कहना ना मार्फत की बातें कैसे होंगी? नेकी कर, कहना नेकी करते फंस जाओ, नेकी कर दरिया में डाल फंस जाओ। नहीं भाई, मसीही दीन कहता है नेकी करने से तू फंसेगा नहीं, बल्कि नेकी से मार्फत का रूह मिल जाएगा। मार्फत का रूह क्या है? मार्फत का रूह इलाही ज़ात की सफात है। नेकी करना भी ज़ात इलाही की सफात है। इसलिए तू मुझे नेक क्यों कहता है? वही जड़ी नेकी खुदा करदा है, कदी टलिया सूरज भी कट देंदा है, मींह भी बरसा देंदा है, नेकां ते बदां ते किस कदर नेकी करदा पिया। ईमान पर नेकी, इसका मतलब मसीही दीन में भी नेकी वाजिब है। किस पर? ईमान पर। और ईमान पर जब नेकी करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? रट्टा लगाएं, मार्फत। और मार्फत से क्या मिलेगा जी? और मार्फत पर परहेजगारी। मार्फत पर क्या मिलेगी जी? परहेजगारी की है। परहेज के तो करना है। मैनू बड़ी देर बाद समझ आई परहेज करना की है। तेरी बेइज्जती मैं, मेरी तू बेइज्जती करे तो मैं परहेज की करना है? तेरी बेइज्जती ना करा। नहीं समझ आई? परहेज किस गल तो करना है? नहीं समझ आई? वही आई समझ? वही मेरी नहीं, हाँ आई समझ परहेजगारी दी? ऐसी समझ आई परहेजगारी दी? कहना हाँ फिर तेन मैं दस लाँगा, पता ना मेरा तेनू ये परहेज को नहीं किया उन्हें। मैं 2 यार बुलाए ना ते तू लभना नहीं, चक्किया नहीं जाना, चक्किया जाना तेनू लभ भी नहीं सकना। ये परहेजगारी है?
भाई हमने परहेजगारी करनी है। कैसे? ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, और मार्फत जब आ जाएगी तो परहेज आ जाएगा। की आ जाएगा? मुंह बंद कर। समझ गए हो ना? दिल करे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਪਾਪ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ? ਨਾਪਾਕੀ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇਗਾ? मार्फत दे नाल। ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत। आगे भी बड़ा प्यारा बयान है जी। और परहेजगारी पर सब्र। और फिर उस तो बाद की जी परहेजगारी तो बाद की पैदा होएगा? सबर। हुण ला लो साहब, आ मुंडे मुंडे जड़े ये हिसाब लाओ, शारे ते खलो के वेखियो, सबर वेखियो, शारा बंद हो गया ना, इंज करी जाणगे, इंज करी जाण, कदी क्लच अगे, कदी पिछे, कदी अगे, कदी पिछे। सबर ही कौन है? मैनू इंज लगदा मेरी रूह भी बेचैनी जही है। फिर कहिए ऐ सीधा ट्रैक ना, इधर दी एडे बेचैन, रूह भी बेचैन, खलोना ही नहीं। फिर कहते पंजाबी का हथ नहीं खलोंदा, एडा बेचैन, कदी इनू छेड़, कदी ओनू छेड़, कदी ओ कर, बेचैन है ना। सबर ही कोई नहीं। जे फोन ना कोई सुने, अगों जवाब ना दे, तो फिर ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਸਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ। ये सबरी के सब्र के जाएगा? मसीही दीन का सब्र है। पहले ईमान, ईमान पर नेकी, नेकी पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र। अगे भी बड़ी खूबसूरत गल है। नेकी, हाँ जी अगे। और सब्र पर दीनदारी। सब्र पर क्या जी? ਇਹਦਾ मतलब दीनदार कौन है? मसीही दीन वाला कौन है? ਜਿਹੜਾ सब कुछ करके फिर की है जी? नहीं तो सुक्का कही जाओ रासबाज कौन? ते लड़ाई तो भी सब तो पहले अगे, नफरत तो भी सब तो पहले अगे। ए सारियां गल्लां करके अगे बड़ा खूबसूरत लिखा मसीही दीन दे बारे च जी। और दीनदारी पर बरादराना उल्फत। वाह, दीनदारी पर की जी? दीन तालीम की दे रहा जी? बरादराना मोहब्बत। केड़ी मोहब्बत जी? बरादराना मोहब्बत समझते हो ना? कामरान भाई तुसी मेरे घर आ जा कॉफ़ी पीनी, जिन जो दिन मैं तुम कहना कॉफ़ी पी, तुम कहना मैं नहीं पीने, मैं कहना ही चलो बरादराना मोहब्बत ही वधा लीए। तुसी नहीं पीती, मैं कहा ठीक है। सानू भी अच्छे वाला डब्बा आया ही, मैं कहा ठीक है ना पियो भाई। ऐ वा बरादराना मोहब्बत। आओ जी चाह पिए बैठ के, या ऐ वाली बरादराना मोहब्बत को नहीं, तेरे को भी टाइम को नहीं, तो मेरे को भी को नहीं, बाद च पीवांगे। ये पिंडी वालियां दा मुहावरा है जी, पिंडी इस्लामाबाद वालियां दा। तेरे को भी टाइम को नहीं, तू भी दो नौकरियां करदा, मैं भी दो नौकरियां करदा, तेरे को भी टाइम को नहीं, तो मेरे को भी टाइम को नहीं, तो बाद च चाह पीवांगे। भाई बरादराना मोहब्बत कहाँ है? किसी की खबर गिरी। इसलिए मसीही दीन में जब अदालत हुई तो कहा तूने मुझे कपड़े दिए, तूने मुझे खाना खिलाया, तूने मेरी खबर गिरी ली। ऐ भाई ईमान वाला, तो कपड़ियां दी गल वेख लो, अपने सेफां दा आप ही हिसाब ला लो। मैं नहीं दसनिया तुहाडियां सेफां दे बारे च। कब्जे तो मैं कईयां दे टुटे वेखे आ,
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਏਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਬਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੇਫ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪੇਚ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, 3 ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਕਾਬਲਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਜ ਘਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਬੈਤਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੈਤਲ ਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ सेफ बरी है वो एक खाना खाली करके दे दे, ये हुक्म नहीं है। जिसके पास एक दे दे, तूने मुझे कपड़े दिए, ऐ मेरे बाप के प्यारो उस मरास में चले जाओ, यहाँ की मरास दोगे, यहाँ की चीज़ें दोगे तो वहाँ की चीज़ें आपको मिलेगी, ये वाली नहीं, ये इधर ही देनी होगी, वो ये वाली उधर नहीं जाएंगी, ये मादा यहाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। मेरी बात को समझे हैं जी? फिर नेकी अगे ज़रा, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। फिर की करो जी? मोहब्बत ਵਧਾਓ या घटाओ? मोहब्बत नू की करो जी? बढ़ाओ, बढ़ाओ जी। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद ना हो और अगर ये बातें तुझ में मौजूद हो ना हो, मौजूद हो आगे नाम ही है, और ज़्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। लो जी ये गल्लां की करनगियां जी? फलदार करेगी। कादे च? मसीह दी पहचान च। मसीह वाला पॉइंट रह गया है, वो अगली बारी कर लांगे, ठीक है जी। पहचान च गल्लां की करनगियां जी? सादियां सादियां ना जी, बढ़ती जाणगियां। ते जिरचे गल्लां नहीं, वो कौन है? अंधा। अब देख लो, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है। वो क्या है जी? वो की है जी? अंधा। ओ बोलो की है भैना? वो की है? ओ भैन केड़ी है ते भरा केड़ा है? अगर यह गल्लां ना होण ते मैनू कहण दी जरूरत नहीं, ते मेरे को फिर एक चीज़ है वाजी कि मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू भी ना हो जाए जो आग में तपाया गया है। ये हिकमत है, ये हिकमत के साथ होगी। सुरमा क्या है? हिकमत। मुझसे सुरमा ले ले ताकि बिना हो जाए। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੁਰਮਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਸੇਫ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁझसे ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲੈ। फिर केड़े नज़र है जी? अंधा और कुताए नज़र, हाँ, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। पॉइंट तो मेरे होर भी सी, अगली बारी कर लांगे। तो याद रखियो कित्थों छोड़िया जी? अंधा है तू। अगे मसीह दा पॉइंट असी डिस्कस करांगे, ठीक है जी।